Is this ad interrupting your music? Just like phones keep interrupting my life? Hi, I'm Mansi. I'm blind. And I'm here to tell you that Savlon antiseptic now comes in Braille bottle. Thank you. Now you can enjoy your music. हाय, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हाय दोस्तों, मैं हूं गुड्डू धनवा और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Built atop the Bandra hill, the fort at Jhansi is a rock fort, a Giridurg. It was commissioned by the Bundel ruler Veer Singh Dev in the first half of the 17th century. The Bundela architectural style was a unique blend of three distinct styles: the Hindu Rajput, Jain temples, and the Indo-Islamic style. Many of the buildings constructed during this period reflect this. बुंदेला के बाद इस किले का कंट्रोल जो था मराठों के पास चला गया था। मराठों के बाद ब्रिटिश के कंट्रोल में चला गया था ये किला, और उन्होंने कितनी ही बिल्डिंग्स को ध्वस्त कर दिया था बड़ी बेदर्दी से। They rushed through construction of buildings and barracks for their soldiers and people according to their needs. ये जो किला है ये यूनिक है कि इस किले में तीन आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिल जाते हैं एक ही जगह पे, और ये इकलौता कारण नहीं है जिससे कि ये किला रिमार्केबल लगता है। जो झांसी का किला है वो बच्चे के समान लगता है हिंदुस्तान के बाकी अलग किलों के सामने, चाहे वो एज में हो और चाहे वो स्केल में हो। भारत के इतिहास में लेकिन ये किला बहुत ही अच्छी प्लेस पाता है। यही वो जगह थी जहां से कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था। यही वो जगह है जहां पे कि पहला बैटल क्राई दिया गया था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का। उसके बाद ब्रिटिश इतने पे वो हो गए थे कि वो कभी भी यहाँ बैठ नहीं पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आए नया एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलों का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, क्योंकि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करते हैं हम चर्चा इस शो में किसी न किसी नए किले की, और आज के शो में हम चर्चा करेंगे झांसी के किले की। Built atop the Bangara hill, the fort at Jhansi is a rock fort, a Giridurga. It was commissioned by the Bundel ruler Veer Singh Dev in the first half of the 17th century. The Bundel architectural style was a unique blend of three distinct styles: the Hindu Rajput, the Jain temple, and the Indo-Islamic Indo-Saracenic. And many of the buildings within the fort constructed during this period reflect this. After the Bundelas, the control over the fort passed to the Marathas. After the Marathas, the fort was taken over by the British, who ruthlessly destroyed many of the buildings constructed by their predecessors. They rushed through construction of buildings, barracks to house their soldiers, to meet with their strategic and military requirements. This fort is a unique showcase where three distinct fort architectural styles can be seen at one place. But this is not the only reason this fort is remarkable. The fort of Jhansi is like a child compared to other forts of India, both in age and in scale. But it occupies a very special niche in the history of India. This is where the spark was ignited that started the conflagration of 1857. This is where the first battle cry was given for the first war of Indian independence, which made the position of the British very precarious. They never could be secure after that. सब जग सैनिकों लगे कि प्यारो हिंदुस्तान तावे धरा बुंदेल में सो झांसी नगद महान। झांसी इन उत्तर प्रदेश, ये तकरीबन 425 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। ये जो बुंदेलखंड में जो है सबसे फेमस किला यही है झांसी का किला। It was built by the rulers as a
small castle to house garrison of soldiers to stand guard at the borders of their state. Soon it acquired significant strategic importance. झांसी शहर और इसके साथ साथ बुंदेलखंड का ये जो इलाका है, ये सारा क्षेत्र जो है ऐतिहासिक प्रचुर संपदा से भरा हुआ है। इतिहास के मध्यकाल का जो चंदेलकालीन और प्रतिहार काल का वैभव है, यहाँ की पूरा संपदा यहाँ पर दूर दूर तक अंचलों में बिखरी हुई है। झांसी का जो म्यूजियम है वो कितने ही बेशकीमती सोविनियर से भरा हुआ है। कुछ स्टैचू तो इतने पुराने हैं कि गुप्ता राज के कालीन है वो स्टैचू, और कुछ तो उस टाइम के हैं जबकि प्रतिहारास, कल्चरीज एंड चंदेलास इस भाग में राज किया करते थे। यह इस बात का गवाह है कि झांसी जो था सिचुएटेड था एट द क्रॉस रोड्स ऑफ द हिस्टोरिक ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। झांसी जो था ओरछा स्टेट के भाग था एक। मराठा जो थे उन्होंने जो था कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द गैरसन फोर्ट को भगा के खुद इस किले पे कब्जा कर लिया था। द किलेदार हैड द स्टेटस ऑफ अ लोकल गवर्नर अपॉइंटेड बाय द पेशवा, बट फिर गुजरते वक्त के साथ ही मैनेज टू assert his independence and behaved like a small ruler. He continued to get benefit from the Maratha Confederacy. The Maratha expansion as a confederacy from 1709 and particularly after 1720s is remarkable. In the process of expansion, the Marathas planted themselves firmly in central India, and Jhansi is one of the principalities. There are several subordinated principalities, independent principalities which are there. झांसी का जो किला है वो भले ही छोटा है साइज में, लेकिन चूंकि जो है वो पहाड़ी पे बना हुआ है तो इन्वेडर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता था यहाँ तक पहुंचना। जो रैम्पार्ट्स के ऊपर वॉच टावर्स बनी थी उसके जो था सेंट्रीज जो थे दूर तक नजर दौड़ा रख सकते थे किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के ऊपर। द गार्डियन वॉल्स अंडुलेट विद द अनइवन ग्राउंड एंड द टावर्स आर बिल्ट एट डिफरेंट लेवल्स। इनके ऊपर जो कैनन्स पड़े हैं दे रीएनफोर्स द फोर्ट्स आर्मर, और वो इस किले को सुरक्षित रखती थी एट द टाइम ऑफ सीजेस। झांसी की गवर्नरशिप और महाराजाशिप दोनों बहुत ही समृद्ध थे, और जितना फाइटिंग मटेरियल इनके पास था वो किसी रियासत में नहीं था, और किसी की फिर बाद में हिम्मत भी नहीं पड़ी रघुनाथ राव प्रथम सूबेदार नेवालकर के बाद के यहाँ झांसी पर हमला करें। किले के पास जो था 10 गेट थे जिसको कि सक्सेसफुली क्रॉस करना था अंदर पहुंचने के लिए, और ये आसान काम नहीं हुआ करता था। लार्ज कैनन्स प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल्स प्लेड हैवॉक ऑन द एनिमीज। जितनी भी गन्स यहाँ रखी हुई थी उनमें से कड़क बिजली और भवानी शंकर जो है ये दोनों काफी फेमस है। These were used very effectively by Rani Lakshmibai in her fight with the British. Memorials to Gunner Ghaus Muhammad and Moti Bai Jalkari stand inside the fort. इन दोनों ने रानी लक्ष्मीबाई की बहुत सेवा करी थी और अपने प्राण भी त्याग दिए थे इन दोनों ने किले की सुरक्षा में। Well, in the beginning it was a very small principality during the Mughal period, but after the break of the Mughal Empire, like many successor states, it emerged in that part of Bundelkhand. 18th century in Indian history is a period where one centralized imperial power gets replaced with many regional powers which are capable of retaining their autonomy and also competing with others
for territory and resources. Now, Jhansi was one such example. पंचमहल जो है एक ऐसी बिल्डिंग है जिसने कि it escaped from becoming ruins, built in many layers and in different times. This showcases the blending of different architectural styles. क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो था फिर से जब इस किले पे कब्जा किया था उसके बाद कितनी ही इमारतों को ध्वस्त कर दिया था इस किले के अंदर, उन्होंने इस महल को सुरक्षित छोड़ दिया था to house their troops inside the fort. This mahal was linked to the other parts of the fort through underground tunnels. Secret tunnels and secret doors, and eye could be kept on what is happening outside. The supplies could be sort of secretly brought in. So they were very meticulously planned. And in terms of, in the times of attack and in times of surrender, the escape routes, they also had to be, planned. And there was a lot of the fort which was invisible, and not only from outside the fort, but inside the fort. बारादरी जो है एक बहुत ही बड़ा पवेलियन है और वो मुगल स्टाइल में बनाया गया है. That breaks the monotony of harsh military architecture dominated by towers and ramparts. The feminine buildings stand out as a charming exception to the dominating masculine fort. It tells us that life has a softer, pleasant dimension, free from strife and struggle. बुंदेली की जो माटी है उसके बारे में महाकवि अवधेश जी लिखते हैं, बुंदेलों की सुनो कहानी बुंदेलों की बानी में, और पानी डारे यहाँ का पानी आज यहाँ के पानी में. यह है बुंदेली की संस्कृति. उस संस्कृति की कोई बराबरी नहीं कर सकता. अरे सिंहासन हिल उठे राज बंसों ने भगुटी तानी थी, और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी. बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी, लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी. Lakshmibai जो थी was born and named Manu in the family of a poor Maharashtrian Brahmin who worked in the office of the Peshwa. She showed signs of exceptional intelligence and courage at a very early age. जब वो एडोलेसेंट में पहुंची तब उनकी शादी हो गई थी तो गंगाधर राव जो कि झांसी के महाराज थे. 19th century India was a time and a place when the girl child was greatly discriminated against. It was felt that the place of a girl or a woman was within the confines of the four walls of the house. Lakshmibai challenged this notion from the outset. From her childhood and adolescence, she insisted that she be treated at par with a male child, and a considerate father allowed her to learn horse riding, learn fencing. She took a keen interest in the affairs of state, and that is why she was in a position to meet the challenges ably when confronted with them. When her husband died unfortunately, the British threatened that they would apply the doctrine of lapse and take over the state of Jhansi. Lakshmibai took over the reins of governance in her own hand and ruled the principality ably, efficiently. More than anything else, she was accessible to all her subjects, especially to those who are addressed today as the minorities and the Dalits, the deprived sections of society. And that is what the reason is that people like Ghaus Muhammad, Moti Bai and Jhalkari willingly sacrifice themselves to ensure that Lakshmibai has a safe passage from a besieged fort when she wanted to break through. She may have ruled for a very short period of time, but left an indelible imprint on the minds of the people of Jhansi. शादी के बाद उन्होंने गवर्नेंस में इंटरेस्ट दिखाया. अपने सब्जेक्ट्स की सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था. टू प्रोटेक्ट एंड नर्चर देम एज हर ओन चिल्ड्रन. वो अच्छी तरह से जानती थी कि एक आम इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल और मुसीबत भरी होती है.
और वो भी उस एरिया में जो कि एरिड और रॉकी था। जो अंग्रेज थे उन्होंने उनकी जिंदगी और भी मुश्किल बना दी थी बाय आस्किंग फॉर मोर रेवेन्यूज एंड टैक्सेस, और वो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते थे इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। थोड़े टाइम के अंदर ही रानी ने जो रैम्पेंट करप्शन था इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सब साफ कर दिया था। उन्होंने कितनी ही स्कीम्स लेके आई वो, और उनको इम्प्लीमेंट भी किया फॉर द पुअर एंड द सफरिंग्स। उनका लड़का जब कालांतर में गुजर गया तो उन्होंने दामोदर राव के नाम के एक लड़के को अपने ही वंश के गोद लिया। उस समय यूरोप जो था उसने उनके गोदनामे पे ऐतराज किया और उनके गोदनामे को नहीं माना। रानी झांसी लड़ी, यहाँ के जो न्यायालय थे उन पर लड़ी, और लड़ने के बाद वो प्रिवी काउंसिल तक लड़ने गई, लंदन तक। कलकत्ते में उनने वकील किए, तमाम लोगों ने उनकी मदद की, लेकिन अंग्रेजों ने उनका किले को, उनकी रियासत को कोर्ट ऑफ बायर्स कर दिया। उनको 6,000 रुपए महीने की पेंशन पर रानी महल में रखा और किला उन्होंने अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया। चाहे ब्रिटिश ने जो है झांसी पे कब्जा कर लिया हो, लेकिन रानी तो अपने सब्जेक्ट्स की दिल और दिमाग पे राज किया करती थी। जो लोग थे वो उनके सामने पिटीशन भेजा करते थे इन द रानी महल, और आशा करते थे कि वो ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। रानी ने पूरी अपनी कोशिश करी टू हेल्प देम एंड बाइडेड हर टाइम केयरफुली एंड मॉनिटरिंग सीजिंग विद डिस्कंटेंट। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की ताल्लुक है तो वो बहुत तेज थी, मुकदमा खुद सुनती थी और फैसले खुद डिक्टेट करती थी, और कभी कभी बेट लेकर के अगर किसी को सजा देना होती थी तो वो सजा भी दे देती थी। तो एडमिनिस्ट्रेशन ही था। लैंड रेवेन्यू वगैरह के बारे में जितनी जातियां थी, लूट खसोट थी, बैल खोलवा, ये सब महारानी के जमाने में नहीं हो रहा था। कॉमन आदमी को ये फील करा देना है कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी बेहतरी के लिए कोई देखने सुनने वाला है। जो रानी महल की अंदरूनी दीवारें हैं, दे आर कवर्ड विद ब्यूटीफुली कलर्ड पेंटिंग्स। जो रानी थी वो बहुत ही सिंपल स्पार्टन लाइफ जिया करती थी, बट अंडरस्टूड वेल हाउ these outward appearances were to maintain the dignity of her position and proclaimed majesty. Her claim as a sovereign made it imperative to display trappings of royalty. British policy of annexing or withdrawing privileges of successor states, or treating independent chiefdoms, expanding their own hegemony, dictating terms. All these factors configured into this big project of getting rid of the British colonial rule in India, and Jhansi played a very important role, with Rani Jhansi becoming a major figure a larger than life figure in this campaign, which we still remember with great fondness and excitement. Soon an opportunity came her way to teach the British a lesson. The sepoys in the Barrackpore cantonment mutinied in 1857. जो ये सब था, ये बहुत जल्दी फैला और mutineers captured the Red Fort in Delhi, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना राजा मान लिया। ये जो था, इस कारण से it shook the very foundation of the British rule in India. रेबल फोर्सेस जो थी, उन्होंने झांसी के किले के अंदर जो ब्रिटिश सिपाही रह रहे थे उनके खिलाफ भी जंग छेड़ दी। जो अंग्रेज थे उन्होंने ओरछा से मदद मांगी, लेकिन उससे पहले कि रीइंफोर्समेंट पहुंचे, दे वर डिफीटेड एंड एक्सपेल्ड फ्रॉम द फोर्ट, और रानी ने अपने किले पे फिर से कब्जा कर लिया था। The revolt is strong. It shakes them up. There's a recording. Chaplain K. Brown is reporting. We cannot believe that we escaped all this, that the revolt did not take us over. The importance of Jhansi is not militaristic. It is symbolic. The fort is crucial. The fort is important. It is stormed. बदकिस्मती से जिन्होंने ब्रिटिश को चैलेंज किया था, वो खुद नहीं बच पाए अपने आप। By March 1858, the British had crushed the revolt.
अंग्रेजों ने जो किले के ऊपर सीज कर ली थी टू फोर्स द रानी आउट ऑफ इट, एंड बहुत ही रिलेंटलेस बमबारी की गई इस किले की। द रानी टुक ओवर द कमांड एंड रेजिस्टेड द इन्वेडर्स फॉर मेनी डेज। जब रानी को लगा कि अब तो मुश्किल होता जा रहा है परिस्थिति, तब उन्होंने जो था कुछ अपने चुनिंदा आदमियों के साथ लड़ना प्रेफर किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि झांसी ने वो शहादत दी है पूरी दुनिया के लिए, जिसकी वजह से यूनाइटेड किंगडम, जिनका राज्य उदय से अस्त तक था, अमेरिका से लेकर के चीन तक जिनका गुलाम था, जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, ये झांसी ही वो जगह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए खुददार और कद्दावर लोग तैयार हुए और 1947 में देश आजाद हुआ। Mortally wounded, the Rani breathed her last fighting the British. Her sacrifice continued to inspire patriots to resist and take revenge for years to come. यहीं पे भगवान दास माहौर, यहीं पे सदा शिवराव मलकापुर, यहीं पे चंद्रशेखर ने आकर के बम बनाने की शिक्षा ली, यहीं पे डॉक्टर भगवान दास माहौर जैसे लोग जिन्होंने भुसावल कांड में मजिस्ट्रेट के सामने अंग्रेजों के गवाह को गोली मारी, यहीं पे रामसाय शर्मा हुए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लाइन लग गई। झांसी एक कारखाना हुआ अंग्रेजों से लड़ने के लिए। यहाँ पे एक स्टीम तैयार की गई, यहाँ पे वॉलंटियर तैयार किए गए, तात्या टोपे, मलकारपुर, डॉक्टर भगवान दास माहौर, सदा शिवराव मलकारपुर, और फिर इतिहासकारों ने उसमें अपनी आहुति डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा, मैथिसर गुप्ता, सुभद्रा कुमारी चौहान जैसे लोग आए, जिनकी वजह से झांसी का नाम दुनिया में रोशन हुआ। इन सारी बातों का श्रेय झांसी की रानी को जाता है, झांसी के किले को जाता है और झांसी के निवासियों को जाता है। उनका मस्तक गौरवान्वित होता है कि झांसी की वजह से अंग्रेजों के पांव 1857 में उखड़े, 1947 में अंग्रेजों का अपना बिस्तर बोरिया बांध करके और लंदन को कूच करना पड़ा और हमारे हाथ में हमारा शासन आया। इसका श्रेय झांसी को जाता है। The soul-stirring saga of Rani of Jhansi एक जंगल की आग की तरह सारे देश भर में फैल गई। Her memory is hallowed and she enjoys unimagined love and respect. जो उनके कारनामे थे वो गाए जाते हैं आज भी। बाराखटा in Andhra Pradesh fills the audience with nostalgia and invigorating inspirations. 150 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है जबकि आग जो शुरू हुई थी इट हैड अनगल्फ्ड झांसी। रानी लक्ष्मीबाई अभी भी लोगों के याददाश्त में जिंदा रहती हैं। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की जय। These pictorial images depicting her in battle suit have made her features familiar to every Indian. She is truly immortal. ये झांसी की बाम वखल विश्व में कर गई बाई साहब जूना। ये है झांसी की गौरव गाथा। सीधे साधे सरल स्नेही मन के बड़े उदार, धर्म और ईमान बने हैं जिनके पहरेदार। न सुख को और न दुख को छोड़, 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बाढ़ो, 12 स्वर्ग करोड़, चलो तो गुण गाओ उनकी ओर, जिनमें बहे नेह की नदियां, श्रम की उठे वलोर। यह है बुंदेलखंड की धरती। झांसी ने जो है हिंदुस्तानी इतिहास की दिशा ही बदल दी। लोगों की जो खास महारानी थी रानी लक्ष्मीबाई, उनकी याद जो है सबके दिलों में ताजा है। शी रिस्टोर्ड आवर लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। She inspired her to resist injustice and exploitation. This has made Jhansi a pilgrimage for every patriot. So दोस्तों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो भारतीय किलो का, जो आप सुन रहे थे और हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी झांसी के किले की।
अगर आप मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि है www.radiolan.com, यानी कि www.radioudaan.com पे जाके भी छोटा सा फीडबैक फॉर्म भर के मुझे अपना वैल्यूएबल फीडबैक सेंड कर सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल जो कि है रेडियो उड़ान पे जाके भी उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस इन द फ्यूचर। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके उस भावरी को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आज से अगले हफ्ते ठीक इसी दिन, ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है फ्लाइट ऑफ लाइफ। और करेंगे हम चर्चा उस शो में केक नहीं किले की। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। अब विंडोज पर भी पुस्तकें पढ़ना हुआ आसान, क्योंकि सक्षम ने लॉन्च किया है डॉल्फिन इजी रीडर फॉर विंडोज, अ फुली एक्सेसिबल रीडिंग ऐप फॉर पीपल विद डिसलेक्सिया, लो विजन और ब्लाइंडनेस। ये ऐप sectec.in पर अवेलेबल है। इस ऐप का लाइसेंस पाने के लिए आज ही लॉग इन करें www.sectec.in और 2 दिन के अंदर पाएं इस ऐप का लाइसेंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9266626368। हैप्पी रीडिंग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें अपने ऑक्सीजन लेवल पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है। इसीलिए सक्षम आप सभी के लिए लेकर आ रहा है टॉकिंग ऑक्सीमीटर, जिसको कि हम कल यानी कि 10 जुलाई 2020 को अपने पोर्टल sectec.in, जो कि SAKTEK.in है, वहां पर लॉन्च करने वाले हैं। इस डिवाइस से आप अपना ऑक्सीजन लेवल मेजर कर सकते हैं और इस मेजरमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जिसको आपको अपनी फिंगर से टच कराना है और आपका जो भी ऑक्सीजन लेवल होगा वो आपको रीड करके बता देगा और आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है। और इस डिवाइस को आप हमसे 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। बट खुशखबरी ये है कि पहले 10 ऑर्डर्स पर हम 200 रुपए की छूट दे रहे हैं और पहले 10 ऑर्डर्स 2800 रुपीज में आप लेकर जा सकते हैं। सो जल्दी से जल्दी कल जैसे ही लॉन्च होता है फटाफट से अपना फोन उठाइए और लैपटॉप उठाइए और ऑर्डर कर दीजिए और ले आइए ऑक्सीमीटर अपने घर। धन्यवाद। मेरा नाम रिया है, मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है, मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है, मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625।
वेबसाइट www.mitrajyoti.org, email ID admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद।